everyone. How are you all? I hope you all are fine. This is your science lecture of grade 5th, and I am your science teacher Aparna Pandey from Ardent Progressive School, Laucher. So student, as you all know that we have started our new chapter number 1, and there we have discussed about the topic that why do all seeds not turn into न्यू प्लांट। वहाँ पे हमने ये पढ़ लिया है कि क्यों सारी की सारी सीड्स हमारी न्यू प्लांट में ग्रो नहीं करती। नाउ टुडे वी नो दैट व्हाट आर द कंडीशंस ड्यू टू विच ऑल सीड्स आर नॉट एबल टू ग्रो इनटू प्लांट्स। नाउ स्टूडेंट्स, in today's class we are going to start another new topic. So you all know that name of our chapter is growing plants from seeds to seedlings. Science chapter 1, growing plants from seeds to seedlings. This is the name of our chapter. And the topic that we are going to discuss today is germination of seeds. The topic that we are going to study in today's class is germination of seeds. So student, I hope that you all have seen the diagram I have drawn on board. Okay. So some idea you all people are getting that what is ma'am is going to explain today. Yes, whatever we will study today, it is related to seeds only. So beta, in our previous video I have explained you what is seed, I have explained you what is seed coat, and I have explained you there about the embryo, the baby plant that comes out from the seed, right? हमने अपनी पहली क्लास में अबाउट सीड कोट, अबाउट कॉटिलेडॉन, अबाउट एम्ब्रियो पढ़ लिया है। ओके, नाउ आज मैं आपको बताने वाली हूँ दैट व्हेन वी सो आवर सीड, जब हम अपनी सीड को बोते हैं, देन हाउ दैट सीड गेट चेंजेस इनटू द न्यू प्लांट। तो किस तरीके से वो हमारी बोई हुई सीड, जो बीज को हम बोते हैं, वो किस तरीके से हमारा न्यू प्लांट में टर्न होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो यू ऑल नो द सीड स्ट्रक्चर। आई हैव शोन यू द बीन सीड। बीन सीड में मैंने आपको दिखाया था कि जो बाहर की कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड सीड कोट, और अगर उस कवरिंग से फिर हमारा एक छोटी सी कुछ आउटर आते हैं बाहर को, दैट इज एम्ब्रियो सीड। हम उसे बेबी सीड या एम्ब्रियो भी कहते हैं। आफ्टर दैट व्हेन वी ओपन द सीड, द टू पार्ट्स आर कॉल्ड द cotyledons. Okay, and the embryo get its food from cotyledons. This all we have discussed already in our previous class. Now let's start today's topic. As I told you that now in today's class we are going to discuss that how do we sow the seed and how that seed changes into the new plant. तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। Let's see. You all can see that I have drawn one diagram here. So beta, this bracket is actually not a bracket. This is soil. But you have to consider that this is soil. ये हमारी क्या है? Soil है। Now ये soil है and this I have taken seed. ये मैंने seed ले ली। After seed ले ली and this is the embryo that is coming out from the seed. ये वो embryo है, ये भी seed है, ये वो embryo है that is coming out from the seed. आप देख सकते हैं, आपने सीड को सॉइल में सो करा, बीज को बोया, उसमें से थोड़ी सी हमारी जो ये आउटर कवरिंग आई, इसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, बेबी प्लांट कहते हैं। ये यहाँ से आया है बाहर, these both are the embryo, and you know the outer covering of the seed is called seed. Don't think that these all are different सीड्स। नो, ये पहली ही सीड है जिसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। ये पहली ही सीड है जिसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। सबसे पहले सीड हमारी कुछ इस तरीके की होती है, फिर इस तरीके की, देन लाइक दिस, देन लाइक दिस एंड देन लाइक दिस। तो इस तरीके से चेंजेस आते हैं। ओके, सबसे पहले हमने देखा कि हमारा सीड से हमारा एम्ब्रियो ग्रो हुआ, ठीक है। फिर ये एम्ब्रियो की लेंथ और बढ़ गई, दिस इज कॉल्ड सीडलिंग, दिस इज कॉल्ड सीडलिंग। अब देखिए, वी ऑल नो दैट on our seed there is a type of a protective layer, that is called seed coat. उसे हम क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं, जिससे मैंने आपको बताया था कि बड़े इजीली वो रिमूव हो जाता है हमारी सीड से, तो दैट इज कॉल्ड सीड कोट। देन ये सीड कोट
हमारी सीडलिंग हो गई, ठीक है, एम्ब्रियो बड़ा हो गया। नाउ सी, अब क्या होता है थर्ड स्टेज में, दैट दिस सीड पुश आउट द एम्ब्रियो आउट ऑफ द सॉइल। अभी क्या होता है कि ये सीड धीरे धीरे एम्ब्रियो को क्या करती है, आउट ऑफ द सॉइल पुट करती है, पुश करती है। तो ये एम्ब्रियो आप देख सकते हैं कि सॉइल से हाफ बाहर आया है, एंड यू कैन सी दैट हियर, ये हमारा सॉइल से बाहर आया है, एंड यहाँ पर ये क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। दिस इज द ग्रोथ। ये क्या है हमारा, यू नो दिस इज आवर सीड। ये सीड कोट हो गया, एंड सीड कोट के अंदर हमारा क्या होता है, कॉटिलिडॉन। तो ये जो ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हैं, ये मैंने ये दिखाया है कि सीड कोट है, ये जो व्हाइट पोर्शन है यहाँ से सीड कोट रिमूव हो गया है, सो दैट आई कैन शो यू द कॉटिलिडॉन, ठीक है। तो थर्ड स्टेज में क्या है कि हमारी सीड ने खुद को ऐसे टर्न कर लिया है, खुद को ऐसे रोटेट कर लिया है, घुमा लिया है कि वो सीडलिंग को बाहर को पुश कर सके। और ये देखिए इस पोजीशन में हमारी सीडलिंग थोड़ी सी बाहर आ गई है। दिस इज द पोर्शन ऑफ कॉटिलिडॉन एंड दिस इज सीडलिंग। नाउ व्हाट आर दीज? दीज आर द रूट्स, दीज आर द रूट्स। अब आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है, अभी तो सिर्फ सीडलिंग बाहर थी और यहाँ से ये रूट है, धीरे धीरे ये जो हमारी सीडलिंग थी ये कॉटिलिडॉन को भी बाहर खींच के ले आती है सॉइल से, ओके। ये जो हमारी सीडलिंग है ये धीरे धीरे हमारे कॉटिलिडॉन को भी सॉइल से बाहर खींच के ले आती है। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज कॉटिलिडॉन, दिस इज कॉटिलिडॉन, ये देखिए, एंड दिस इज द पोर्शन ऑफ प्लांट, दिस इज रूट। ये हमारे क्या है, दीज आर द रूट्स, दिस इज द स्टेम, दिस इज कॉटिलिडॉन। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉटिलिडॉन कम अबव द ग्राउंड। कॉटिलिडॉन क्या हो गया, हमारा ग्राउंड से बाहर आ गया है। तो इस तरीके से हमारा कॉटिलिडॉन ग्राउंड से बाहर आ गया। नाउ फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये कॉटिलिडॉन अभी आपको मोटा दिख रहा है ना, धीरे 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 इसका साइज भी बिग दिख रहा है, अभी धीरे धीरे इसका साइज कम होता जाएगा जैसे जैसे कॉटिलिडॉन में स्टोर्ड फूड प्लांट यूज करता जाएगा। एंड हियर द स्मॉल लीव्स अपीयर्स, ये ग्रीन लीव्स आ गई हैं हमारे प्लांट में, और एंड दीज ग्रीन लीव्स मेक फूड, दीज ग्रीन लीव्स मेक फूड। सो नाउ आई होप दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन कि किस तरीके से हमारी सीडलिंग में आती है, एंड दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन, और इसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। सबसे पहले सीड में एम्ब्रियो, देखो सीडलिंग, देन एम्ब्रियो का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, देन थर्ड स्टेज दैट सीड पुश द एम्ब्रियोज पार्ट आउटसाइड। इस तरीके से सीडलिंग आती है उसे बाहर को पुश करती है, तो ग्रोथ ऐसे हो जाती है। आफ्टर दैट दिस सीडलिंग पुश द कॉटिलिडॉन आउट ऑफ द सॉइल, यहाँ से सॉइल से कॉटिलिडॉन को बाहर खींचता है, एंड आफ्टर सम टाइम क्या होता है, प्लांट में आपकी लीव्स आने लगती है और कॉटिलिडॉन का फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सो स्टूडेंट, हियर नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट स्टेज ऑफ द सीड ग्रोथ, एंड दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। जब किसी सीड से तो हमारा प्लांट निकलने लगता है तो हम उसे कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड और सीडलिंग। और इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं तो अंकुरित होना, किसी भी बीज का अंकुरित होना। एंड यू कैन सी दैट दिस इज ऑल्सो, यू हैव ऑल्सो सीन दिस व्हेन यू आर डूइंग ब्रेकफास्ट ऑफ स्प्राउट्स। आपने स्प्राउट्स खाए होंगे, स्प्राउट्स में आप देखते हैं क्या है वो, स्प्राउट्स में जो भी पल्सेस आपके मदर्स ने यूज किया है वो सारे क्या हैं, दे ऑल आर सीड्स। एंड आफ्टर सम टाइम जब हम उसे भिगा के रख देते हैं तो क्या होता है, द स्प्राउट्स आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट सीड्स हैज स्टार्टेड जर्मिनेटिंग, तो दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, ओके। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन योर बुक। Open book page number 2. Open book page number 2. Here you can see that what is given, germination of seeds. Germination of seeds. Now in this topic, let's see what is given. Let us see how a plant grows from a seed. चलिए अब हम ये देखते हैं कि कैसे हमारा plant seed से grow होता है. Take some bean seed. Place the seeds on a piece of a moist cotton in a plate. Keep the cotton wet. Place the plate near a sunny window. Look at the plate every day. What do you observe? ये क्या कह रहा है आपसे करने को? इसने कहा कि
आप कुछ बीन की सीड्स ले लीजिए। उन बीन सीड्स को आपने क्या करना है, किसी मॉइस्ट गीले कॉटन में रख देना है और उस कॉटन को भिगाते रहना है। मतलब वो कॉटन हमेशा भीगा होना चाहिए, उसको सूख के ड्राई नहीं होना है, कॉटन को आप वेट ही रखेंगे। प्लेस द प्लेट नियर द विंडो वेयर सन रेज कम्स। ओके, उसे ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पे आपके वो वेट कॉटन में रखी हुई सीड्स पे सन रेज पड़े। वट डू यू ऑब्जर्व, तो फिर अब आपको क्या दिखेगा, You will see that after 2-3 days, कितने 2-3 days बाद, you will see that after 2-3 days the seed cover becomes soft and splits open। तो जो सीड कवर होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। सीड कवर क्या है, सीड कोट। तो सीड कोट जो है सॉफ्ट हो जाएगा एंड स्प्लिट्स ओपन, और वो स्प्लिट्स ओपन होके बाहर उसके जो स्प्लिट्स है वो ओपन हो जाएंगे। द बेबी रूट स्टार्ट्स ग्रोइंग फ्रॉम ईच साइड, और बेबी की रूट क्या होगी, दे स्टार्ट्स ग्रोइंग फ्रॉम ईच साइड, हर साइड से बेबी की रूट जो है इट स्टार्ट्स ग्रोइंग फ्रॉम ईच साइड, each not side sorry, the baby root starts going from each seed। हर सीड से आप देखेंगे कि बेबी रूट बाहर आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया था दिस इज द पार्ट, इस तरीके से बेबी रूट बाहर आ रही है। After few days small leaves comes and a new plant starts growing, और उसके कुछ दिन बाद छोटी छोटी लीव्स आने लगती हैं एंड न्यू प्लांट्स ग्रोइंग। अब इसके बाद इसने सीधे ये बता दिया कि आफ्टर सम डेज लीव्स स्टार्ट्स कमिंग एंड न्यू प्लांट ग्रोज। तो हमारा डायरेक्टली तो नहीं होता है, उससे पहले भी कुछ स्टेजेस होती हैं दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हियर इन वीडियो। द स्मॉल न्यू प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग। तो ये जो न्यू प्लांट हमारा सीड से जर्मिनेट होके आता है दिस इज कॉल्ड सीडलिंग। व्हेन द सीडलिंग कम्स आउट ऑफ द सीड इट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। और जब ये सीडलिंग सीड से बाहर आती है, व्हेन द सीडलिंग कम्स आउट ऑफ द सीड इट इज कॉल्ड germination। Thus the development of a seed into a seedling is called germination। अब देखिए हमने क्या कहा, ये यहाँ से हमारी बेबी रूट्स बाहर आई, बेबी रूट्स बाहर आने के बाद उसमें धीरे धीरे कुछ लीव्स आएंगी, लीव्स आने के बाद एक प्लांट की तरह ग्रो होने लगेगा। ओके, आफ्टर दैट क्या होता है, आफ्टर अ फ्यू डेज न्यू प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग। दिस स्मॉल न्यू प्लांट, इस स्मॉल न्यू प्लांट को हम क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। व्हेन सीडलिंग कम आउट ऑफ द सीड, तो वो पार्ट जहाँ पे सीडलिंग सीड से बाहर आने लगते हैं दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। Thus the development of seed into seedling is called germination। During germination the baby plant get all of its food from the cotyledon which contain the stored food। जर्मिनेशन, जब तक कि सीड पूरा प्लांट में ना टर्न हो जाए सीड, तब तक उसको फूड कौन प्रोवाइड करवाता है, कॉटिलिडॉन प्रोवाइड करवाता है। द स्टेजेस इन द जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड इज शोन एज बिलो। ठीक है, तो ये आपकी सारी क्या हो गई, स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। नाउ व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन? सीड्स नीड स्पेशल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन। Let us study these condition. Okay, here is one activity given. This activity this is homework. You all will do this activity after going through it. Okay, ये activity homework में है, आप सब इसे घर में कर सकते हैं, पहले भी explain किया है। So this activity you have to do at home and I am telling you the conditions that are necessary for the germination of seed. These are, number 1 is water. Seeds need water or moisture for germinating. Number 2 is air. Number 3 is sunlight and number 4 is proper temperature. Water भी है, air भी है and sunlight भी है, लेकिन उसके बाद भी हमारी सीड कब सीडलिंग में नहीं टर्न हो पाती, जब उसके बाद प्रॉपर टेम्परेचर नहीं होता। तो सीड्स को ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर भी चाहिए, दैट इज 60 to 90 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर सीड्स को चाहिए होता है सो दैट दे कैन टर्न देमसेल्फ इनटू द न्यू प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, सो बेटा हियर आई टोल्ड यू दैट एक्टिविटी इज गिवन, यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी बाय योरसेल्फ एट योर होम। गो थ्रू दिस एक्टिविटी एंड डू बाय योरसेल्फ। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दैट व्हाट यू हैव डन इन दिस एक्टिविटी। So I hope beta that in today's class you all are able to understand the meaning of germination. When seed get changes into the seedling, that is called germination. And what are the stages of germination? How seed get changes into seedling? How from seed new plant
grows these all things I have explained you in this video. If you are not getting the things clearly, no need to worry, as we will move forward, so many things will be clear easily. Okay, so move step by step, no need to worry. I hope you all will like this video. Thank you and have a nice day ahead.